Well, hello and good morning, class 9. Now I'm going to connect you with what we did yesterday. I'm going to take up the same thing once again so that it may get sunk in to your head. Now this is present indefinite. This is what I was teaching you yesterday, and once again I repeat you for better remembrance. See, what I told you is that you need to remember that first set, I, we, you, they, and third person plural number. Third person plural number means to whom we talk about. And they must be more than one. That will be called plural number. कहने का मतलब यह है कि किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात करते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है. फिर सेकेंड सेट में है ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर नंबर. इट शुड बी हियर, इट शुड बी सिंगुलर नंबर. देखिए, पहले वाले में प्लूरल नंबर है और दूसरे सेट में जो है वो है सिंगुलर नंबर, यानी कि उल्टा है ये सिंगुलर नंबर. Or again I am repeating you the present indefinite tense that I taught you yesterday. That is I, we, you, they plus third person plural number. यानी कि फर्स्ट सेट के साथ आप सिर्फ वर्ब लगाएंगे. जैसे I go to school every day, I talk to our friends, you talk too much, they prepare for exams. मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब verbs हैं. Boys play on the ground, the girls attend the class, the buses ply on the same route. Ply कहते हैं बच्चों एक ही रूट पे जब बसों का आना जाना होता है उसे PLY ply कहते हैं. अब दूसरे सेट के साथ क्या होगा, मैंने कहा था कि S या ES लगेगा. He goes to bed early, she helps her brother in studies, it works well, Ravi goes to market to buy vegetable, Rani lives near the market, the scooter sputters. S लगा हुआ है, देखिए आवाज कर रहा है. The train runs very fast, runs very fast, यानी कि S ES का इस्तेमाल होगा. और फर्स्ट सेट के साथ मैंने बताया था कि डू ऑक्सिलरी है. तो डू ऑक्सिलरी का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था तीन फंक्शंस होते हैं ऑक्सिलरी के. एक तो अगर आपको क्वेश्चन, इफ यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप इसे आगे लगा देंगे. डू आई गो टू स्कूल एवरी डे, do we talk to our friends, do you talk too much, do they prepare for exams, do the boys play on the ground, do the girls attend the class regularly, do the buses fly on the route. ऐसे do आप क्वेश्चन बनाने के लिए पहले लगा देंगे. अगर इसमें do not लगा देंगे तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा. I do not go, या तो आप do not करें या इसका शॉर्ट में don't हो जाएगा ये do not. I do not go to school, we do not talk to our friends, you do not talk too much, they do not prepare, the boys do not play, the girls do not attend the class, the buses do not ply. Do not का इस्तेमाल करके नेगेटिव बन जाता है. और मैंने बताया था आपको क्वेश्चन टैग भी. I go to school every day, don't I, यहाँ पे बन जाएगा don't I. इसका मतलब हो जाता है do I not. ऐसे ही फिर we talk to our friends, do we not या don't we. फिर ये बन जाएगा डोंट यू, फिर ये बन जाएगा डोंट दे, फिर ये बन जाएगा डोंट दे. यहाँ पे जैसे द बॉयज है तो डोंट बॉयज नहीं आएगा बल्कि आएगा डोंट दे. फिर ऐसे ही द गर्ल्स अटेंड द क्लास रेगुलरली, डोंट दे, द बसेस फ्लाई ऑन द सेम रूट, डोंट दे. अब यहाँ पर जो है दूसरा, यहाँ पे ये जो S ES लग रहा था सब पे लगा है, हर वर्ब में S या ES लगा है. देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए S ES लगा है. ये नहीं लगेगा अगर आप डज का इस्तेमाल करेंगे. जैसे he does not go to bed early, she does not help her brother in studies, it does not work well, Ravi does not go to market, Rani does not live near the market, the scooter does not sputter, the train does not run very fast. यानी कि does कहेंगे तो does not run. ऐसे ही अगर क्वेश्चन के लिए भी लगाएंगे तब भी इसमें SES नहीं लगेगा. does he go to school, does she help her in this way. आप जानते होंगे पहले से भी, लेकिन फिर भी it is for your revision. Now I'll take up the second tense, that is present continuous. I'll take up present continuous.
और मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इस्तेमाल है वो रोजमर्रा की चीजों में, दिन प्रतिदिन की जो भी आपकी हैबिट्स वगैरह होती हैं या रूटीन वर्क होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो यूनिवर्सल चीजें हैं जो होती ही हैं, उनके लिए भी हम SES का इस्तेमाल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स, द कैट म्यूज, एटसेट्रा। Now let us talk about present continuous tense. Now it is continuous. एक चीज ये याद रखेंगे, continuous की स्पेलिंग को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। CONTI, कंटी, यहां तक तो आपको मालूम है। MUOUS, हमेशा ध्यान रखें। CONTI, कंटी, NUOUS, इसको ध्यान रखें, कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट सेट है इसमें आई के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, आई इसमें से हट जाता है। क्यों? क्योंकि हम आई के साथ M प्लस वर्ब ING लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग, हम कहते हैं आई एम स्टडिंग, आई एम लिसनिंग to the radio। बच्चों इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इसमें M ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हम लिखे आई एम गोइंग, M ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब बताता है कि हो क्या रहा है। तो गोइंग में गोइंग बता रहा है, स्टडिंग में स्टडिंग बता रहा है, लिसनिंग में लिसनिंग, लेकिन ये M क्या है? ये M जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, डू और डज हमने बोरो करे थे, बाहर से लिए थे, वो सेंटेंस में नहीं थे। मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में नहीं होते हैं, और यहां पर लेकिन होता है। जैसे आई एम लिसनिंग। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर यही एम को आगे रख देंगे, आई एम गोइंग, और नेगेटिव बनाना होगा तो आई एम नॉट गोइंग। ऐसे ही फिर आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट लिसनिंग टू द रेडियो। अब अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो एम आई स्टडिंग, एम आई लिसनिंग टू द रेडियो, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चों? इसका क्वेश्चन टैग वैसे तो एम आई नॉट, यहां पे नॉट को एम के साथ नहीं जोड़ते, एमेंट नहीं लिखते हैं, वो गलत होगा, ये लिखना गलत होगा। जैसा कि बाकी सब में तो यही लिखा जाएगा इसी तरह से, लेकिन ये ऐसे, ये जो है ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। एम आई नॉट, या तो आप ऐसे कहें एम आई नॉट, और या फिर आप कहेंगे, या आप कहेंगे एंट आई, AINT, एंट आई एम स्टडिंग, एंट आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, एंट आई। हालांकि एंट बच्चों इज नॉट के लिए भी, एम नॉट के लिए भी, आर नॉट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मैंने देखा कि नॉवेलिस्ट अक्सर किसी के लिए भी यूज करते हैं इसे, लेकिन अधिकतर, ज्यादातर ये एम आई नॉट की जगह पे यूज होता है, एंट आई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एंट आई, आई एम नॉट गोइंग देयर, एंट आई, नहीं आई एम गोइंग देयर, एंट आई। और आई एम नॉट गोइंग जब आएगा तो फिर कहेंगे आप एम आई। जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर, एम आई एम नॉट स्टडिंग इट, एम आई, इस तरह से। तो एम के एम, ये जो आई है इसके साथ एम प्लस पर ING आएगा बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आई के अलावा बाकी जो भी फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट एक्सेप्ट आई, फर्स्ट सेट एक्सेप्ट आई, ये बनेगा आर प्लस वर्ब ING। जैसे we are studying, ऐसे ही you are traveling, we are singing, यानी कि सबके साथ उनके बाकी के जो हैं, क्योंकि आई के साथ तो एम लग गया, लेकिन विद रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस you'll be using R plus verb ING. Okay, for example, we are studying, you are traveling, we are singing, इस तरह से। अब यहाँ क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब है। स्टडिंग बता रहा है क्या हो रहा है,
आर ट्रेवलिंग में, ट्रेवलिंग बता रहा है क्या हो रहा है। तो ये जो है मेन वर्ब्स और ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चों। आर जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और ये है मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का ही से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। आर बी स्टडिंग, इसको आगे रख देंगे, आर बी स्टडिंग हो जाएगा। और वी आर नॉट स्टडिंग अगर नेगेटिव बनाना है तो, और अगर इसे क्वेश्चन टैग बनाना है तो वी आर स्टडिंग, आंट वी। अब इसको बच्चों आप आरंट टू बी कहने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट से आरंट टू बी, यू मस्ट से आंट वी। यू आर ट्रेवलिंग, आंट यू। वी आर सिंगिंग, आंट वी, आंट वी, ये बनेगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में है, जैसे वी आर नॉट डांसिंग, वी आर नॉट डांसिंग, तो इसका जो ये पॉजिटिव में बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। ऐसे ही यू आर नॉट ट्रेवलिंग, आर यू, ऐसे बोलेंगे। वी आर नॉट सिंगिंग, आर वी। यानी कि अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बनेगा, और अगर वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। ये है इसका तरीका। तो ये था फर्स्ट सेट के साथ, यानी कि सभी में आई को छोड़ के, आई के साथ तो एम लग गया, तो वी आर, यू आर, दे आर, स्टूडेंट्स आर, शीप आर, students are learning their lesson, अब ये क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? aren't they। ऐसे ही the horses are grazing in the field, यानी कि घास चर रहे हैं, in the field यानी कि खेत में घास चर रहे हैं, तो aren't they, ये क्वेश्चन टैग बन जाएगी। बच्चों क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल ज्यादातर स्पीकिंग में या फिर डायलॉग राइटिंग में होता है। कहीं भी अगर डायलॉग लिखना पड़े, चाहे नॉवल में चाहे कहीं भी, तो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होता है, या आपकी बातचीत में भी। द हॉर्सेस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, aren't they, स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन्स, aren't they, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम सेकेंड सेट पे, यानी कि आप समझ रहे होंगे आई के साथ एम और बाकी सब फर्स्ट सेट के जो बाकी सारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम आर और वर्ब आईएनजी लगाते हैं। अब सेकेंड सेट के साथ दूसरा होता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों को अलग अलग रखिएगा, एक को लेफ्ट पेज में और राइट पेज में। सेकेंड सेट को राइट पेज में आप रख सकते हैं। तो सेकेंड सेट को अगर आप राइट साइड में रखेंगे तो उससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि इसके साथ अलग और इसके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है दोनों के साथ। तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला ये है कि सेकेंड सेट के साथ इज प्लस वर्ब आएंगे, ऐसे यूज होता है बच्चों। जैसे ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब इसको देखिए, इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है। मैं बता चुका आपको पहले भी। इसी को आगे रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा इज ही प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ऐसी फिर क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, इजंट ही, क्योंकि यह इसका मतलब हो गया इज ही नॉट, ये इसका अर्थ होता है बच्चों। इजंट ही हम इसे नॉर्मली ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, इज ही नॉट। ऐसे ही फिर ही, फिर शी के साथ शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो isn't she, यानी कि नहीं गा रही है क्या, isn't she। अब हम इसको अगर इसे नेगेटिव में लेंगे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, ये आप जानते हैं। जैसे माना हम कहें कि she is not going to market, she's not going to market, is she। अब ये not नहीं आएगा यहाँ पे, is she आएगा। क्यों? क्योंकि not हमने इधर यूज कर दिया है। she's not dancing, is she।
क्या डांस कर रही है, यानी कि वो डांस नहीं कर रही है। ऐसे ही बच्चों इन दोनों का अर्थ एक ही होता है असल में, ये सेंटेंस का भी और इसका भी। ये सिर्फ बात को जोर देने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं आप शैतानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, मीन्स यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आंट यू, और यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप बकवास बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आंट यू, नहीं कर रहे हैं क्या। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस क्वेश्चन टाइम। और बच्चों दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब होता है जब हम कोई चीज बोलते समय देखते हैं या हम उसके बारे में कोई कंटिन्यूटी के बारे में उसकी बात करते हैं। जैसे माना आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लुकिंग एट मी, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर स्टडिंग राइट नाउ। नॉर्मली इसका इस्तेमाल जब कोई चीज कंटिन्यूटी में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही होती है तो उसके लिए होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। जैसे हम कहते हैं कि आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज, यानी कि मैं आजकल नॉवल पढ़ रहा हूं, तो इसके लिए मैं कहता हूं आई एम रीडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी वो नॉवल पढ़ रहा हूं। या जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम डूइंग माई क्लास 10, आई एम डूइंग माई क्लास 11, और आई एम रनिंग अ बिजनेस, और माई फादर इज रनिंग अ बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस समय पे भी वो वही काम कर रहे होंगे। या जैसे इसके अलावा भी बच्चों हम फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जब हमें जल्दी ही नियर फ्यूचर में अगर कोई काम अर्जेंट होता है या जरूरी होता है या जल्दी या हमारी स्ट्रांग इच्छा होती है। जैसे माना मुझे शाम को ही लखनऊ जाना है, तो आई एम गोइंग टू लखनऊ टुनाइट, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुनाइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल बी गोइंग टू लखनऊ टुनाइट, instead of saying that we replace it by present continuous tense। तो present continuous tense का इस्तेमाल इस तरह से भी होता है। I am reading a book, I am talking to my friends, like that। I hope you must have understood this, and otherwise you must see this video again in order to become surer। ज्यादा श्योर होने के लिए आप दोबारा देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है बच्चों आगे के लिए भी, क्योंकि बेसिक है ये ग्रामर का, इसके अलावा इसके बगैर काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।